Hey, hello boys and girls. So the wait is over. CMA Inter all amendments for June 23 term. CMA Inter law all amendments for June 23 term is right here in this video. Applicable for both old syllabus as well as new syllabus. So you should watch it till last. Okay. Approximately it's a 50 minutes video in which I have covered all the amendments in great details along with the concepts, and I have made sure that if any section that I am teaching which contains amendment, I have recapped that section also for you, so that you don't have to refer that section before watching the amendment. You can straight away watch the amendments. You will be able to understand because I have revised those sections also in this amendment. Okay, so that's it. Now you can watch this amendment session that I have already recorded for you guys, and do comment in the comment box your feedback that how was the amendment and how are you liking our efforts and all the pain that we take for your gain, right? And बस इसी तरीके से प्यार बरसाते रहिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए. अमेंडमेंट्स आर ऑल हियर एंड आई एम द फर्स्ट वन टू गिव यू ऑल द अमेंडमेंट्स फॉर सीएम इंटर एज यूजुअल एज ऑलवेज, राइट? एंड बात बाकी सब्जेक्ट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है. टैक्सेशन के अमेंडमेंट है वो बहुत जल्द आपके लिए आ जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट नो अमेंडमेंट्स आर देयर. So what about new syllabus, sir? Yes, new syllabus में law में there are extra 5 classes that I am going to take, okay? And those 5 classes I'm going to take live on YouTube so that every student gets the chance to watch those amendments in the new syllabus. This amendment is also applicable for new syllabus and old syllabus both. Extra 5 classes in which new chapters have been added in CM Inter Law new syllabus. Those only new syllabus students watch. But this amendment, old, new, all should watch, right? And if you like our efforts, do refer our classes to your juniors and friends, and so that they can also enjoy the best quality education for CMA. Okay, so amendment starts now. The way to get the notes are there in the Telegram group. Join our Telegram group also. The link is given in the comment box. And do subscribe the channel, hit the bell icon. Now start with the amendment. Without wasting any time, let us start. Let us start, guys. ये amendment class अब हम लोग start कर रहे हैं. सारे के सारे amendment section 1 से लेकर के 148 तक हम लोग करवा रहे हैं. बट अभी भी मैं देख रहा हूँ पाप लग जाएगा बेटा. जिन्होंने मजा लेना है अमेंडमेंट का बेटा और चाहते हो कि समझ में आए तो वीडियो को लाइक बटन दबा दो, नहीं तो पाप लग जाएगा बेटा. चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और दूसरों के साथ भी यार शेयर करो. मैं इतना सही तो तुमसे मांगता हूं यार. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं यार. तुम्हारे से मैं इतना ही तो मांगता हूं कि जरूरतमंद लोगों तक ये चैनल पहुंचा दो यार. बस इतना ही तो मांग रहा हूं. पहुंचा देंगे सर, टेंशन ना लो. गुड न्यूज क्या है? लास्ट टर्म में भी अमेंडमेंट्स कम थे, इस टर्म में भी अमेंडमेंट्स कम है. मैं आपको बता दूं देयर आर वेरी फ्यू अमेंडमेंट्स इन कंपनी लॉ, ठीक है? लेकिन वार्निंग ये है कि अमेंडमेंट्स को लाइटली मत लेना. लास्ट ईयर के भी अमेंडमेंट्स अभी तक एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं तो कभी भी आ सकता है. कमिंग सून इस टर्म का अमेंडमेंट एंड लास्ट ईयर का अमेंडमेंट्स कमिंग सून फॉर योर मई जून 23 एग्जाम. जैसा कि आपको पता है, अगर आपको क्लासेस वगैरह का दरकार हो तो वन स्टॉप सोल्यूशन है www.meplclass.com. फिर मैं आपको बता दूं ये वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूं. ये वीडियो में इस टर्म का तो हम लोग अमेंडमेंट कवर करने ही वाले फॉर मई जून 23. इसके साथ ही साथ अच्छा मई जून 23 का जो अमेंडमेंट्स होता है ना, वो इंस्टीट्यूट बोलता है पिछला 6 महीना का जो अमेंडमेंट है वो करना है. इमीडिएटली लास्ट 6 मंथ्स में जो अमेंडमेंट है वो नहीं करना है. तो मई जून 23 में आपका एग्जाम है. ये अमेंडमेंट मैं शूट कर रहा हूं जनवरी में, तो ऑब्वियस सा बात है इसका मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर अमेंडमेंट आएगा तो मई जून 23 में एप्लीकेबल नहीं रहेगा. तो सर कब तक के अमेंडमेंट सर मई जून 23 में एप्लीकेबल रहते हैं? 31 अक्टूबर तक के. 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022 तक जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो मई जून 23 टर्म के लिए एप्लीकेबल है. तो इस वीडियो में हम लोग 1 मई 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 ये 6 महीना का अमेंडमेंट तो कवर करने ही वाले हैं. इसके साथ उसके पहले के 1 साल के अमेंडमेंट भी कवर करने वाले हैं. यानी आपको इस वीडियो में लास्ट 1.5 ईयर के अमेंडमेंट मिल जाएंगे, यानी लास्ट 3 टर्म के अमेंडमेंट आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे. तो आपको कोई भी टेंशन लेने का दरकार नहीं है, राइट? ओके सर, मेरा फीस बिल्कुल है. बिना गुरु दक्षिणा के लेक्चर जो है वो लगता नहीं है, तो मेरा फीस बिल्कुल है. आपका अच्छा नंबर, जस्ट स्कोर गुड मार्क्स, दैट इज माय फीस फॉर अमेंडमेंट्स एंड द अपकमिंग रिवीजन सीरीज दैट इज गोइंग टू बी हैपन वेरी सून. चलो सबसे पहला अमेंडमेंट चैप्टर नंबर 1 में है बेटा. चैप्टर 1 क्या है? याद है ना? प्रिलिमिनरी. यार ये कैसा अमेंडमेंट है जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट अमेंडमेंट इन द टाउन था. इट इज द मोस्ट हाईलाइटेबल अमेंडमेंट इन द टाउन. सबको इस अमेंडमेंट के बारे में पता है कि यार स्मॉल कंपनी में कुछ तो अमेंडमेंट आया था. इनफैक्ट जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर 22 में था ना, वो भी पूछते रहते थे सर हमारे लिए अमेंडमेंट ये एप्लीकेबल है क्या, हमारे में अमेंडमेंट एप्लीकेबल है क्या? नहीं, नवंबर दिसंबर 22 के लिए एप्लीकेबल नहीं थे. मई जून 23 एंड उसके बाद वाले टर्म के लिए एप्लीकेबल है. मई जून 23, नवंबर दिसंबर 23, मई जून 24 में अगर तुम्हारा एग्जाम है तो तुम्हारे लिए वाला अमेंडमेंट एप्लीकेबल है मई जून 23 ऑनवर्ड्स. वो अमेंडमेंट क्या है? स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 35, जिसका स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पड़ा हुआ है. अच्छा मैं अमेंडमेंट जो है ना बहुत फास्ट बताता हूं, बट मैं बिल्कुल
जिस जिस टॉपिक में अमेंडमेंट है उस टॉपिक का मैं रिवीजन भी करवा देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली ये बता दूंगा ये अमेंडमेंट है, जिस टॉपिक में अमेंडमेंट है उस टॉपिक का रिवीजन भी मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन जिसको बहुत अच्छे से याद है स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन याद है ना, स्मॉल कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस सच अ प्राइवेट कंपनी विद सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। पेड अप शेयर कैपिटल कितना करोड़ हुआ करता था? पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, पेड अप शेयर कैपिटल को प्यार से पीयूएससी बोलेंगे, पीयूएससी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़। ये दोनों डबल हो गए हैं, ये दोनों डबल हो गए हैं लिमिट। मतलब जो पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ था वो अब हो गया है, डबल कर दो, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। जो 2 करोड़ 20 करोड़ का लिमिट था, 2 करोड़ एंड 20 करोड़ का लिमिट था, वो डबल होकर के 4 करोड़ एंड 40 करोड़ हो गया है। आई रिपीट, पहले पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट 2 करोड़ था, वो अब 4 करोड़ हो गया है। टर्नओवर का लिमिट पहले 20 करोड़ था, वो अब 40 करोड़ हो गया है। क्लियर है सर? तो स्मॉल कंपनी को अगर एग्जाम में आपको लिखना हो तो स्मॉल कंपनी मींस प्राइवेट कंपनी, यानी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी विद सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड turnover as per PL of the immediately preceding financial year, turnover as per PL of the immediately preceding financial year does not exceed 40 करोड़। क्लियर है सर? क्लियर है। अब बहुत ही गहराई से अगर ये अमेंडमेंट जाने, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा गहराई से, आपको पता है लॉ मतलब इन डेप्थ एनालिसिस, तो मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 85, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 means a company other than public company. Small company, come on, means a company other than public company. Small company means a company other than public company. Paid up share capital of which does not exceed 50 lakh. अब कुछ बच्चे जो है ना, कुछ टीचर लोग भी ये 50 लाख को काट करके 4 करोड़ लिखवा देते हैं, 50 लाख को काट करके 2 करोड़, उसको काट करके 4 करोड़। नहीं रे बाबा, एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 85 में एक्चुअल में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन क्या है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, अभी भी है 50 लाख, अभी भी एक्ट में लिखा हुआ है। बोला गया पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 lakh और सच हायर लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। 50 लाख हायर हो सकता है, हाँ हायर हो सकता है, एज मे प्रेस्क्राइब, एज मे प्रेस्क्राइब। तो बोला कि पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो प्रेस्क्राइब रूल्स में किया गया था, और वो जो 50 लाख प्रेस्क्राइब किया गया था ना, 50 लाख और सच हायर लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया था 2 करोड़। तो 2 करोड़ जो रूल्स में प्रेस्क्राइब था, रूल्स में अमेंडमेंट आया है और वो 2 करोड़ बन गया है 4 करोड़। वो 2 करोड़ बन गया 4 करोड़, ये रहा 4 करोड़। तो 2 करोड़ कट करके क्या बन गया? 4 करोड़। फ्यूचर में ये रूल्स में पेड अप शेयर कैपिटल अभी 2 करोड़ को काट करके 4 करोड़ कर दिया। क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको सीजी रूल्स में प्रेस्क्राइब 6 करोड़ या 8 करोड़ कर सकता है क्या? फटाफट बताओ। हाँ कर सकता है, 6 करोड़ भी कर सकता है, 8 करोड़ भी कर सकता है, 10 करोड़ भी कर सकता है, बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एक लिमिट लाया गया, विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। सीजी को बोला गया आप स्मॉल कंपनी का जो पीयूएससी का लिमिट है, आपको जितना चाहे प्रेस्क्राइब करना है कर दो, बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। 10 करोड़ के ऊपर प्रेस्क्राइब मत कर देना। तो सीजी अगर चाहे तो जो पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट है स्मॉल कंपनी का, कितना भी प्रेस्क्राइब कर सकता है, बट शुड नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो सीजी ने तो 10 करोड़ से ज्यादा प्रेस्क्राइब भी नहीं किया, कितना किया? 4 करोड़। मैं बोल रहा हूं फ्यूचर में ये 4 करोड़ का लिमिट सीजी बढ़ा करके 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मक्खन है सर। ये एनालिसिस उनके लिए है जिन लोग लॉ बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ रखे हैं, शॉर्टकट में लॉ पढ़ रखे हैं। तो आपको स्मॉल कंपनी में खाली इतना याद रखना है, स्मॉल कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। बट जो डिटेल में पढ़ रखे हैं अभी भी 50 लाख की जगह 50 लाख ही है। कुछ बच्चे 50 लाख का काट करके 4 करोड़ कर देते नहीं, 10 करोड़ को काट करके 4 करोड़ कर देते नहीं, 50 लाख और 10 करोड़ अभी भी इन प्लेस है। बट जो रूल्स में 2 करोड़ बताया गया था वो अब 4 करोड़ हो गया। फाइनल आंसर 4 करोड़ है, बिल्कुल सही, फाइनल आंसर 4 करोड़ है। तो फिर से एक बार समझ लो, स्मॉल कंपनी को क्या बोला गया? बोला गया स्मॉल कंपनी क्या होता है? देखो ना इधर, समझा दूंगा मैं, तुम पहली बार कर रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, ठीक है ना? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं हो सकता। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब। क्या हायर अमाउंट प्रेस्क्राइब किया गया? हाँ किया गया। कितना? 4 करोड़। पहले यही चीज 2 करोड़ था, अब 4 करोड़ हो गया। फाइनल आंसर 4 करोड़। क्या सीजी फ्यूचर में 4 करोड़ को और बढ़ा सकता है? सीजी फ्यूचर में 4 करोड़ को और बढ़ा सकता है, 10 करोड़ तक ले जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता। करंट लिमिट 10 करोड़ है, नहीं, करंट लिमिट 4 करोड़ है।
तो स्मॉल कंपनी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक रहे, डज नॉट एक्सीड 4 करोड़। एंड उसी प्रकार टर्नओवर जो है, टर्नओवर ऑफ विच एज पर PL of immediately preceding financial year, turnover of which as per PL of immediately preceding financial year does not exceed 2 करोड़। सीजीज को बढ़ा सकता है, हाँ बढ़ा सकता है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहले प्रिस्क्राइब 20 करोड़ था, अभी प्रिस्क्राइब्ड है 40 करोड़। 20 करोड़ कट करके कितना आ गया बेटा? 40 करोड़। ठीक है, फ्यूचर में सीजी ये 40 करोड़ को और बढ़ा सकता है, 100 करोड़ तक बढ़ा सकता है, 100 करोड़ के ऊपर नहीं ले जा सकता। जैसे पेड अप शेयर कैपिटल का करेंट लिमिट 4 करोड़ है, फ्यूचर में सीजी इसको 10 करोड़ तक ले जा सकता है। टर्नओवर का लिमिट करंट में 40 करोड़ है, फ्यूचर में सीरीज को 100 करोड़ तक ले जा सकता है। अब बच्चा बोलेगा भाड़ में क्या सर, फ्यूचर में 10 करोड़ और 40 करोड़। फ्यूचर में लिमिट कितना हो सकता है? 10 करोड़ और 100 करोड़। फ्यूचर का लिमिट कितना हो सकता है? 10 करोड़ और 100 करोड़। करंट लिमिट कितना है? 4 करोड़ 40 करोड़। बहुत सिंपल है सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। तो करंट लिमिट मेरे को बता दो। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़। फ्यूचर में सीरीज को बढ़ा सकता है। अरे भाड़ में गया सर, फ्यूचर छोड़िए ना, अभी प्रेजेंट के बारे में सोचने दीजिए सर। बट ठीक है सर, आप बोल लीजिए, आप अपना मन का पूरा कर लीजिए। फ्यूचर में इस लिमिट को 4 करोड़ कितना हो सकता है? 10 करोड़, और 40 करोड़ कितना हो सकता है? 100 करोड़। तो अभी करंट लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर का 4 करोड़ 40 करोड़ है। 4 करोड़ 40 करोड़, 4 करोड़ 40 करोड़। फ्यूचर में हो सकता है 10 100 10 100 10 100। अभी करंट कितना है? 4 40 4 40 4 40। हटा 7 के घटा। अगर तुम्हारा कल एग्जाम है तो मैं तुम्हें खाली एक लाइन में बताऊंगा स्मॉल कंपनी क्या होता है। स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी विच सैटिस्फाइज बोथ द कंडीशन। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर एज पर PL ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़। 4 करोड़ 40 करोड़। आगे बढ़ो। डन है सर, डन 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 सर। बहुत ही गहरा एनालिसिस हुआ है। चैप्टर 1 में और कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। चैप्टर 2 में आ जाओ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereto। ये जो अमेंडमेंट है ना, ये 1 साल से अमेंडमेंट आ रखा है, ये नया अमेंडमेंट नहीं है। ये मैंने पिछले 2 अमेंडमेंट क्लास में भी कवर करवाए थे, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट के आरटीपी में है तो इसलिए मैं फिर से कवर करवा दे रहा हूं। सेक्शन 16 में अमेंडमेंट है, सबके रेगुलर बैच में अमेंडमेंट कवर्ड है, टेंशन ना लो। इनफैक्ट मेरे से जो मई जून 23 का रेगुलर बैच लिया था उसमें स्मॉल कंपनी का भी अमेंडमेंट हमने रेगुलर बैच में कवर कर लिया था। रेगुलर बैच वाले बच्चों के सारे अमेंडमेंट कवर्ड है, उनको कोई टेंशन नहीं लेना है, वो रिवीजन के हिसाब से देख ले। चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereto। सेक्शन नंबर 16 रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अच्छा ध्यान रखना, जो भी अमेंडमेंट है मैंने उसको रेड कलर से लिखा है। अमेंडमेंट मतलब रेड कलर, मतलब ये ब्लू वाला पोर्शन तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, रेड कलर वाला अमेंडमेंट है। ये रहा, एक रेड कलर यहां मिला सर, ये रहा अमेंडमेंट, और एक रेड कलर यहां मिला। ठीक है सर, पढ़ाइए ना सर, पूरा पढ़ा दीजिए ना सर, सेक्शन 16 पूरा पढ़ा दीजिए ना। Very quickly then, very quickly, rectification of name of company. Come on यार, come on guys, show me the fire. चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर पास होना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो बेटा। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी में आ जाओ। आपको पता होगा सेक्शन 16 क्या बोलता है? सीजी, और सेक्शन 16 में जो सीजी वो कौन है? आरडी, रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है कि वो नया कंपनी को नाम चेंज करने बोल सकता है। रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है कि वो नया कंपनी को अपना नाम चेंज करने बोल सकता है कि नया कंपनी चल अपना नाम चेंज कर। अबे नया कंपनी अपना नाम चेंज कर। क्यों सर? क्योंकि नया कंपनी का जो नाम था, न्यू कंपनीज नेम इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल विद एन एग्जिस्टिंग कंपनीज नेम। सीजी यानी आरडी हैज अ पावर to direct the new company to change the name. CG यानी RD has the power to direct the new company to change the name if new company's name is either identical or too nearly resemble with an existing company name. एक existing company का नाम है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम है, existing company है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। आपने नाम कर दिया, आपने भी खोल दिया टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो भाई आइडेंटिकल हो गया। या आपने नाम खोल दिया टाटा सन, तो टू नियरली रिजेंबल हो गया। सन्स के जगह आपने SON खाली लिख दिया, ठीक है। या फिर टाटा में डबल ए लगा दिया, TATA है आपने TAATA लगा दिया, तो टू नियर रिजेंबल हो गया। या तो एकदम आइडेंटिकल मैच करवा दिया या फिर टू नियर रिजेंबल नाम रख दिया आपने। तो अगर एक नया कंपनी अपना नाम ऐसा रख देता है जो कि एग्जैक्टली सेम है यानी आइडेंटिकल है, या फिर बहुत हद तक मिलता जुलता है यानी टू नियर रिजेंबल है, तो फिर रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है कि वो नया कंपनी को बोलेगा नया कंपनी अपना नाम चेंज कर। और नया कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नया कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। न्यू कंपनी मस्ट चेंज इट्स नेम विद इन 3 months of CG's direction. Within 3 months of CG यानी RD's direction, new company must change its name by passing over in GM. इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। तो CG यानी RD में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम इफ द नेम ऑफ द कंपनी इज या तो आइडेंटिकल या टू नियर रिजेंबल विद द नेम ऑफ एन एक्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी को नाम चेंज करना पड़ेगा 3 महीना के अंदर। क्या पास करके? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग पास करके। क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस, RD कब नया कंपनी को नाम चेंज करने बोलता है?
आरडी नया कंपनी को न्यू कंपनी को नाम चेंज करने बोलता है, आरडी न्यू कंपनी को नाम चेंज करने बोलता है। दूसरा केस में कब पता है? अगर न्यू कंपनी हैज इन्फ्रिंज्ड यानी कॉपीड यानी वायलेटेड द ट्रेडमार्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। न्यू कंपनी हैज इन्फ्रिंज्ड द ट्रेडमार्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका ट्रेडमार्क हमने इन्फ्रिंज किया, जिसका ट्रेडमार्क हमने चोरी किया, इन्फ्रिंज किया, वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है ना जिसका ट्रेडमार्क हमने चोरी किया, उस एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका ट्रेडमार्क हमने चोरी किया, उसका प्रोप्राइटर ओनर 3 साल के भीतर जब नया कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क चोरी किया, वहां से 3 साल के भीतर आरडी को कंप्लेन कर दिया, तब आरडी नया कंपनी को बोलेगा अबे क्या कर रहा है नया कंपनी, नाम चेंज कर भाई। विद इन 3 मंथ्स नया कंपनी को वही सेम चीज है, नाम चेंज करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स। यहां अमेंडमेंट है। पहले आरडी जब डायरेक्शन देता था ना न्यू कंपनी को कि नाम चेंज करो क्योंकि तुमने ट्रेडमार्क को चोरी किया है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी का ट्रेडमार्क तुमने चोरी किया, और एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका ट्रेडमार्क मैंने चोरी किया, उस एग्जिस्टिंग कंपनी का मालिक, उस एग्जिस्टिंग कंपनी का ओनर आरडी के पास चला गया, तो आरडी नया कंपनी को नाम चेंज करने बोलता था। पहले 6 महीने का टाइम मिलता था नाम चेंज करने के लिए, अब 3 महीना। पहले 6 महीने का टाइम मिलता था नाम चेंज करने के लिए, अब 3 महीना। अच्छा ये ना दोनों जगह 3 मंथ्स हो गया। अगर नाम आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल है तो भी मेरे को आरडी जब बोलेगा नाम चेंज करना पड़ेगा 3 महीना के अंदर, आरडी के बोलने पर 3 महीना के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज किया है, जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल तुमको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में रिलायंस उसका ट्रेडमार्क है, अब मैंने क्या नाम रखा, रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं बता दूं रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आइडेंटिकल है क्या? फटाफट बताओ, क्या रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आइडेंटिकल है क्या? आंसर इज बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। क्या टू नियर रिजेंबल है? बिल्कुल नहीं यार। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ना आइडेंटिकल है ना टू नियरली रिजेंबल है। इट इज नाइदर आइडेंटिकल नॉट टू नियर रिजेंबल, बट रिलायंस उसका ट्रेडमार्क है, मैंने उस रिलायंस का ट्रेडमार्क का नाम यूज करके इन्फ्रिंज कर दिया, चोरी कर दिया उसका ट्रेडमार्क, तो आरएएल आरडी के पास कंप्लेन करेगा, और आरडी फिर रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि नया कंपनी खोला गया है उसको बोलेगा नाम चेंज करो। पहले 6 महीना मिलता था नाम चेंज करने का, अभी कितना महीना मिलेगा? 3 महीना। अच्छा आरएएल कितना साल में कंप्लेन कर सकता है? रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम इन्फ्रिंज कर दिया ना, रिलायंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर दिया, वहां से 3 साल के अंदर आरएएल मेरे खुलने पर इनकॉर्पोरेशन से 3 साल के भीतर आरडी को कंप्लेन कर सकता है, और आरडी मेरे को नाम चेंज करने बोलेगा। पहले 6 महीना था, अभी 3 महीना। बाईपासिंग वही ओवर इन जीएम मक्खन है सर। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कंप्लीट। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। कंपनी जब ओवर इन जीएम पास करके अपना नाम चेंज कर लेगा, 15 दिन के अंदर आरओसी को बताएगा। कंपनी 15 दिन के अंदर आरओसी को बताएगा कि भाई मैंने आरडी के बोलने पर नाम चेंज कर लिया। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। सबसेक्शन 3 में अमेंडमेंट है। पहले अगर तुम नाम चेंज नहीं करते थे ना, तो क्या लगता था? फाइन लगता था। अब फाइन वाइन नहीं लगेगा। अमेंडमेंट के पहले अगर नया कंपनी आरडी का बात नहीं मान रहा है और नाम चेंज नहीं कर रहा है, फाइन लगता था। फाइन वाइन नहीं लगेगा। अलग ही टशन है, अलग ही जलवा है। क्या होगा पता है? तुमने आरडी का बात नहीं माना, नाम चेंज नहीं किया, आरडी खुद से तुमको नाम चेंज कर देगा और एक नया नाम दे देगा। और आरओसी जो है ना, आरओसी जो रजिस्टर ऑफ कंपनी बनाता है, उसमें तुम्हारा नया नाम डाल देगा, पुराना नाम हटा करके तुम्हारा नया नाम डाल देगा। ले बेटा, पर्पस था कि नया कंपनी अपना नाम चेंज करे। तुमको 3 महीना दिया गया नाम चेंज करने के लिए, तुमने 3 महीना में नाम चेंज नहीं किया, तो आरडी तुम्हारा नाम खुद से चेंज कर देगा। इफ कंपनी डिफॉल्ट्स इन कंप्लाइंग विद सीजी's डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा, तो सीजी यानी आरडी shall allot a new name in such manner as may be prescribed, एंड आरओसी क्या करेगा? आरओसी नया नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में डाल देगा इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम, एंड इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंटेनिंग द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। तुमको नया नाम कौन देगा? आरडी देगा। आरडी तुमको नया नाम अलॉट कर देगा, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी तुम्हारा नया नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में डाल देगा और तुमको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर अगर नाम पसंद नहीं आया तो नाम पसंद नहीं आया तो तुम्हारे पास वो सेक्शन 13 तो है ही। सेक्शन 13 पढ़े थे ना, जिसमें हम लोग अपने मन से एसआर इन जीएम पास करके नाम चेंज कर सकते थे, वो तो कर ही सकते हो तुम। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम चेंजिंग इट्स नेम, मतलब वी आर नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम चेंजिंग योर नेम सब्सिक्वेंटली। एक बार आरडी तेरे को नाम दे दिया, उसके बाद तेरे को अगर नाम पसंद नहीं आया आरडी का, तो तुम खुद से चेंज कर सकते हैं बाई पासिंग एसआर इन जीएम एंड अप्रूवल ऑफ आरओसी अंडर सेक्शन 13। याद आ गया सर? सेक्शन 13 में हम लोग अपने आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 में स्मॉल कंपनी का अमेंडमेंट था। चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 16 का अमेंडमेंट था। डन डनाडन डन, डन डनाडन डन। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है सर। अब आ जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर। चैप्टर नंबर 3 में एकदम ताजा अमेंडमेंट है बेटा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का। फटाफट आ जाइए चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट। चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट कमिंग नाउ। चैप्टर नंबर 3 का अमेंडमेंट, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर अमेंडमेंट है।
इसमें जो अमेंडमेंट है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट में एक छोटू सा अमेंडमेंट है, देखो बस इतना ही अमेंडमेंट है, ठीक है ना। जिन लोग यहां तक पहुंच गए हैं बिना वीडियो को लाइक बटन दबाए, बिना चैनल सब्सक्राइब किए और बेल आइकन दबाए, घोर पाप लग जाएगा बेटा, मैं बता रहा हूं, लटक जाओगे। अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, तुम्हारा भाई इतना मेहनत करता है यार, थोड़ा तो बात सुना करो भाई। आ जाइए प्रोस्पेक्टस के अमेंडमेंट के अंदर, फटाफट आ जाइए। सेशन खत्म होने के बाद नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, पहले सेशन का तो मजा ले लो यार। ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट में अमेंडमेंट आया है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 रेड विथ रूल नंबर 14, रूल नंबर याद करने का दरकार नहीं है, खैर मैं आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन 42 सेक्शन नंबर 42 रेड विथ रूल नंबर 14 प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या अमेंडमेंट है, ये देशभक्ति वाला अमेंडमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके अमेंडमेंट लाया गया है। क्या अमेंडमेंट है सर, बताइए ना सर। अगर एक कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाह रहा है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी भी नेशनल को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी भी नेशनल को यानी सिटीजन को, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या किसी भी सिटीजन को अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं और वो बॉडी कॉर्पोरेट और सिटीजन कहां का है पता है, एक ऐसा कंट्री का है जिसके साथ हमारा महान भारत का लैंड बॉर्डर सटा हुआ है। जैसे पाकिस्तान लैंड बॉर्डर सटा हुआ है, चाइना लैंड बॉर्डर सटा हुआ है, नेपाल भूटान लैंड बॉर्डर सटा हुआ है। तो जिस जिस कंट्री का लैंड बॉर्डर हमारे कंट्री के साथ सटा हुआ है, उस कंट्री के बॉडी कॉर्पोरेट को या उस कंट्री के सिटीजन को, उस कंट्री के बॉडी कॉर्पोरेट या उस कंट्री के सिटीजन को अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो भैया आरबीआई का अप्रूवल लगता है। तो आरबीआई का अप्रूवल सामने वाले बॉडी कॉर्पोरेट या सामने वाले सिटीजन को लेना पड़ेगा, और आरबीआई का अप्रूवल लगेगा अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फेमा रूल्स में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट का रूल्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स का रूल होता है, उसके तहत आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं उस बंदे को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकूंगा। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। फिर से सुन लो, मेरा कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहता है ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट या ऐसा सिटीजन को जो कि एक ऐसा कंट्री में रहता है जिस कंट्री का लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ अटैच्ड है। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विद सच अ कंट्री एंड दैट बॉडी कॉर्पोरेट और सिटीजन, ठीक है, वी आर मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट वी आर मेकिंग अ प्राइवेट प्लेसमेंट टू दैट बॉडी कॉर्पोरेट which is incorporated or that citizen who resides in the country which shares land border with India, then in that case RBI's approval under foreign exchange management non convertible security rule has to be taken। मतलब पाकिस्तान का कोई सिटीजन को या फिर चाइना का कोई सिटीजन को या चाइना का किसी कंपनी को हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, चाइना के किसी कंपनी को हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो भैया आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्यों लाया गया? क्योंकि हम लोग देख लिए पेटीएम में क्या हुआ था। पेटीएम वाला ने क्या किया रखा था, विजय शेखरन पेटीएम ने चाइना के सारे इन्वेस्टर लोग को, चाइना के सारे इन्वेस्टर लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखा था, चाइना के सारे इन्वेस्टर लोग को प्राइवेट प्लेसमेंट कर रखा था, और फिर लिस्टिंग करवा करके पेटीएम का लिस्टिंग करा करके क्या किया, चाइनीज इन्वेस्टर को एग्जिट करवा दिया। लिस्टिंग हुआ, पब्लिक का पैसा आया, तो उसमें शेयर किसका बिका, चाइनीज इन्वेस्टर का। तुम समझ रहे हो ना, गेम समझ रहे हो क्या था? अरे बोलो, पेटीएम जब अनलिस्टेड कंपनी हुआ करता था, प्राइवेट प्लेसमेंट तो कर ही सकता था, तो चाइनीज इन्वेस्टर लोग को कर दिया। फिर जब लिस्टिंग जब हुआ ऊंचा दाम पर, तो चाइनीज इन्वेस्टर लोग तो अपना शेयर बेच करके भाग गया ना। अब सीधा यहां चाइना का नाम नहीं लिख सकते, किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते, लाया गया चाइना के लिए ही है, बट सीधा चाइना का नाम नहीं लिखे, सीधा क्या बोल दिए भाई, इंडिया जिस फॉरेन कंट्री के साथ
लैंड बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया जिस जिस फॉरेन कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तुम उस देश के बॉडी कॉर्पोरेट या सिटीजन लोग को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हो पहले आरबीआई का अप्रूवल लो। यानी अगर हम अमेरिका का सिटीजन को प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, अमेरिका के साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर नहीं है, क्या अमेरिका का सिटीजन को या बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट विदाउट आरबीआई से अप्रूवल कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। समझ में आ गया सर? जबरदस्त तरीके से समझ में आया। तो प्राइवेट प्लेसमेंट, अब आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नया प्रोविजो समझ में आता है ना, प्रोविजो बोल लो, प्रोविजो बोल लो, नया प्रोविजो लाया गया, यानी एक्सेप्शन लाया गया, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटी अंडर दिस रूल शैल बी मेड, नो ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटी शैल बी मेड टू, किसको बताओ तो? बॉडी कॉर्पोरेट। आप किसको नहीं कर सकते हैं बताओ तो? बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री, यानी सिटीजन ऑफ अ कंट्री which shares land border with India, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट या ऐसा सिटीजन, ऐसा कंट्री का which shares land border with India unless such body corporate or national have obtained government approval under Foreign Exchange Management Non-Debt Instrument Rule 2019 and attached with the private placement offer cum application letter। तो भैया तुमको गवर्नमेंट का अप्रूवल, और ये गवर्नमेंट ने पावर आरबीआई को दे रखा है, तो गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई का तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई का अप्रूवल लेकर के कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, तभी कंपनी तेरे को प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकेगा। मक्खन सर, मजा आ गया, मजा आ गया। अब चालू मत कर देना भाई डांस। चलो, ये था चैप्टर नंबर कौन सा बताओ? 3। तालियां। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। अब आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। एक छोटू सा अमेंडमेंट है, अगेन मैं बता दूं, ब्लू कलर वाला अमेंडमेंट नहीं है, जो मैंने रेड से लिखा है वो अमेंडमेंट है, रेड कलर वाला अमेंडमेंट है। तो जिनका एग्जाम कल ही है भाई, जिनका एग्जाम कल ही है वो सुन लो। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी में याद है, एक एनुअल रिटर्न डिपॉजिट्स का डीपीटी 3 में भरना पड़ता था। रूल्स में अपने सीखे थे कि जो कंपनी डिपॉजिट ले रखा है उसको 30 जून तक, जो भी कंपनी डिपॉजिट ले रखा है उसको 30 जून एवरी ईयर 30 जून तक फॉर्म नंबर डीपीटी 3 जमा करना पड़ता है उसी के पास कि कितना डिपॉजिट ले रखा है बताओ। अब वो डीपीटी 3 जो है ना, डीपीटी 3 ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ये बात ऑडिटर डीपीटी 3 में लिखेगा कि डीपीटी 3 में जो इंफॉर्मेशन है ऑडिटेड है, ऑडिटर भी डिक्लेरेशन देगा इन डीपीटी 3 में। बस यही अमेंडमेंट है। सर फिर से बोलिए क्या अमेंडमेंट है? डीपीटी 3 जो जमा करता था ना कंपनी आरओसी को, अभी भी कंपनी जमा करेगा आरओसी को डीपीटी 3। अमेंडमेंट ये है कि उसमें डीपीटी 3 में एक डिक्लेरेशन ऑडिटर देगा कि द फिगर्स आर ऑडिटेड। डीपीटी 3 में जो फिगर्स है वो ऑडिटेड है, ये बात का डिक्लेरेशन ऑडिटर देगा डीपीटी 3 में। क्लियर है सर? मक्खन सर, मक्खन मक्खन। तो अमेंडमेंट ये है, डिक्लेरेशन टू डेट इफेक्ट। डेट इफेक्ट मतलब द फिगर्स मेंशन्ड इन डीपीटी 3 आर ऑडिटेड, द फिगर्स मेंशन्ड इन डीपीटी 3 आर ऑडिटेड, ये ऑडिटर डीपीटी 3 में लिख देगा। मक्खन सर, क्लियर है सर? तो डीपीटी 3 याद है ना क्या था? एवरी कंपनी जिसके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल था उसको 30 जून तक, 30 जून एवरी ईयर तक आरओसी के पास जमा करना पड़ता था डीपीटी 3, जिसमें वो पूरा जानकारी फर्निश करता था कि 31 मार्च तक कितना डिपॉजिट लिया गया है, कितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च तक। तो जैसे अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2023 तक कितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, ये बात मेरे को डीपीटी 3 में जमा करना है। कब तक जमा करना है आरओसी के पास? डीपीटी 3 किसको जमा करना है? आरओसी। कब तक जमा करना है? 30th of June 2023 तक जमा करना है। 31 मार्च 2023 तक भाई कितना डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, ये बात मेरे को डीपीटी 3 में आरओसी को बताना है 30 जून 2023 तक। अमेंडमेंट क्या सर वो बताओ ना? अमेंडमेंट सिर्फ इतना सा है कि ये डीपीटी 3 में अब एक बात ऑडिटर का भी लिखा हुआ रहेगा, द फिगर्स मेंशन्ड इन डीपीटी 3 आर ऑडिटेड, द फिगर्स मेंशन्ड इन डीपीटी 3 आर ऑडिटेड। याद है ना डीपीटी 3 एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, तो ये अमेंडमेंट नहीं है, तो पहले भी था डीपीटी 3 इज एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट कंपनीज। क्लियर है सर? अब आ जाओ बेटा चार्जेस के अंदर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में एक छोटू सा अमेंडमेंट है बेटा, एक छोटू सा अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। दो छोटू सा अमेंडमेंट है, बहुत ही छोटू सा अमेंडमेंट है दोनों। पहला अमेंडमेंट क्या है सुन लो। बहुत बार क्या होता है, बैंक्स भी लोन लेते हैं आरबीआई से, बैंकिंग कंपनियां जो बैंक्स होता है ना, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन लोग भी लोन लेते हैं आरबीआई से। तो जब एक बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, मान लो मैं आईसीआईसीआई बैंक हूं, आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई से लोन ले रहा है, तो आरबीआई जब लोन दे रहा है ना, तो आरबीआई बोलता है तेरे को ऐसे ही लोन नहीं देंगे, कुछ गिरवी रख, कोई प्लेज कर कुछ। मतलब आईसीआईसीआई बैंक जब लोन ले रहा है आरबीआई से, तो बदले में कुछ प्लेज करना पड़ेगा। तो बैंक्स के पास जनरली प्रोमिसरी नोट वगैरह रहता है, वो प्लेज कर देता है। आईसीआईसीआई बैंक जब लोन ले रहा है आरबीआई से, जनरली प्रोमिसरी नोट्स वगैरह प्लेज कर देता है, तो भी तो चार्ज क्रिएट हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, बट ये सब चार्जेस का रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है।
ये सब चार्जेस का रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है, ये सब चार्जेस को आपको रजिस्टर नहीं करवाना है। वही चीज बोला गया कि बैंक जब चार्ज क्रिएट कर रहा है इन फेवर ऑफ आरबीआई, व्हेन अ चार्ज इज क्रिएटेड बाय बैंक इन फेवर ऑफ आरबीआई, दोस टाइप्स ऑफ चार्जेस आर एग्जेम्प्टेड, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। क्लियर है सर? क्लियर है सर? ये रहा, नथिंग कंटेंट इन दिस रूल, मतलब चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है अगर चार्ज जो है ना क्रिएट या मॉडिफाई हो रहा है बाय अ बैंकिंग कंपनी। चार्ज क्रिएट कर लो, मॉडिफाई कर लो बाय बैंकिंग कंपनी इन फेवर ऑफ आरबीआई। समझ में आया? तो जब एक बैंक लोन ले रहा है, एडवांसेस ले रहा है आरबीआई से और चार्ज क्रिएट कर रहा है इन फेवर ऑफ आरबीआई, व्हेन अ बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई एंड चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ आरबीआई, दोस टाइप्स ऑफ चार्जेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। दूसरा अमेंडमेंट एकदम रीसेंट अमेंडमेंट, ताजा ताजा ये आया है, तुमको तो पता ही है ना, चार्ज का फॉर्म नंबर CHG 1489, ये सब जो फॉर्म्स होता है ना, एक ऐसा कंपनी है जो कि लिक्विडेशन में चला गया या फिर रेजोल्यूशन प्रोसेस में चला गया। तुमको पता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, रेगुलर बैच में पक्का बताए हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत वो इंसॉल्वेंसी में चला गया। तो ऐसा कंपनी जो इंसॉल्वेंसी में चला गया, लिक्विडेशन में चला गया, ऐसा कंपनी जो इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन में चला गया, तो यार अगर ऐसा कंपनी है जो इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन में चला गया, तो उसका जो चार्ज का फॉर्म है, चाहे वो CHG 1 हो, 4 हो, 8 हो, 9 हो, कौन साइन करेगा? डायरेक्टर तो साइन नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाता है या लिक्विडेशन में जाता है, डायरेक्टर लोग हट जाता है। आ जाता है पता है कंपनी में कौन मैनेज करने? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं उसको। वो बंदा को हम लोग रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बोल सकते हैं, और अगर लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर बोलते हैं। तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है या लिक्विडेटर है, वो साइन करेगा चार्ज का फॉर्म। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है कि जो फॉर्म CHG 1489 है, इट शैल बी साइन बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। चाहे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल लो, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोल लो, लिक्विडेटर बोल लो, फॉर कंपनी अंडर रेजोल्यूशन ऑफ लिक्विडेशन। मक्खन है सर, जबरदस्त सर, मजा आ गया सर, क्लियर है सर? अब आ जाइए बेटा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 का भी अमेंडमेंट खत्म। आ जाओ चैप्टर नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक छोटू सा अमेंडमेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी सुन लो क्या अमेंडमेंट है। तुमको पता है रजिस्टर ऑफ मेंबर जो है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, तुमको पता होगा कि रजिस्टर ऑफ मेंबर कोई भी मेंबर आकर के इंस्पेक्ट कर सकता है। यस सर, रजिस्टर ऑफ मेंबर कोई भी मेंबर आकर के इंस्पेक्ट कर सकता है। तो यार मेरा प्राइवेसी लीक हो जाएगा यार। रजिस्टर मेंबर में तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, मेरा पैन भी है, मेरा आधार नंबर भी है, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरा आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार, पैन, ये 4 इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डिटेल है। मेरे को यार गलत गलत नंबर से फोन आना चालू हो गए यार, लड़के लड़कियां पता नहीं मतलब कौन कौन पीछे पड़ गए यार। मैं अनसेफ महसूस कर रहा हूं यार। फाइनली लॉ मेकर लोग को थोड़ा देरी से समझ में आया, लेकिन आया कि यार इतना सेंसिटिव डेटा लीक नहीं होना चाहिए। तो फाइनली अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्शन अलाउ तो किया जाएगा, 4 चीज छोड़ करके। एनी मेंबर कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कोई भी आकर के, कोई भी मेंबर आकर के रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकता है। 4 चीज को गुप्त रखा जाएगा, 4 चीज नहीं दिखाया जाएगा किसी मेंबर का, जो मैंने 4 चीज बताया, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार और पैन। 4 चीज नहीं दिखाया जाएगा, 4 चीज नहीं दिखाया जाएगा। क्या क्या बता दो? एक तो एड्रेस, ठीक है, एड्रेस बोल लो, रजिस्टर्ड एड्रेस बोल लो, ईमेल आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल एक ही बात हो गया, फोन नंबर भी उसी में है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब एड्रेस, फोन नंबर सब, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब आधार एंड पैन, ये 4 चीज नहीं दिखाया जा सकता इंस्पेक्शन के दौरान। मक्खन सर, मजा आ गया सर। आगे बढ़ रहे हैं, डिविडेंड। बेटा डिविडेंड में एक छोटू सा अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है सुन लो। तुमको पता होगा ना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में बहुत सारा चीज क्रेडिट हो जाता है IEPF में। यस सर, पता है ना सर? सर वही सर, जो डिविडेंड अनक्लेम्ड 7 साल से, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड में पड़ा हुआ है 7 साल से, 7 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में ट्रांसफर हो जाता है, और वो CG का फंड का नाम क्या है? IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ही जो डिबेंचर्स मैच्योर हो चुका है, जो डिबेंचर मैच्योर हो चुका है, बट डिबेंचर होल्डर गायब था 7 साल तक, तो डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिविडेंड हो गया, डिबेंचर, डिपॉजिट, डिविडेंड, अनक्लेम्ड फॉर 7 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स ट्रांसफर टू IEPF। अब अमेंडमेंट के बाद एक और आइटम ऐड हो गया। IEPF में बहुत सारा आइटम जाता था, एक और आइटम ऐड हो गया है। वो आइटम है कि अगर SBO का डिस्क्लोजर नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, सेक्शन नंबर 90 में पढ़ रखे हैं अपने, और सेक्शन 90 मेरा पूरा यूट्यूब पर अपलोडेड है। सेक्शन 90 के तहत सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर यानी SBO का अगर डिस्क्लोजर नहीं करते हो, तो 7 साल के बाद
जो शेयर्स है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा आईईपीएफ में. द शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू आईईपीएफ इफ एसबीओ ऑफ दो शेयर्स आर नॉट डिस्क्लोज. मैं शॉर्ट में बता देता हूं क्या होता है एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. मान लो गवर्नमेंट को पता चल गया कि शेयर जो है ना मिस्टर ए के नाम पर है जरूर, बट पैसा किसी और ने लगाया है. शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर ए. शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर ए, बट मिस्टर ए का पैसा से ये शेयर नहीं खरीदा गया है, किसी और गुप्त आदमी का पैसा लगा हुआ है, किसी पॉलिटिशियन मास्टरमाइंड का पैसा लगा हुआ है जो सामने नहीं आ रहा है. तो भाई अगर शेयर मिस्टर ए के नाम पर है, पैसा किसी और का लगा है, उसको हम लोग एसबीओ बोलते हैं, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर. शेयर मिस्टर ए के नाम पर खरीदा गया है लेकिन पैसा किसी और का लगा है, तो वो एसबीओ बेनिफिशियल ओनर है. उसका नाम बता दो. नहीं बताओगे तो 7 साल के बाद ये शेयर जो है ना गवर्नमेंट जब्त कर लेगा, आईईपीएफ में डाल देगा. मक्खन है सर. अब आ जाओ बेटा अकाउंट्स ऑफ कंपनी. ये लास्ट चैप्टर का अमेंडमेंट है. मैं बता दूं चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी का अमेंडमेंट. अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का अमेंडमेंट है बेटा सीएसआर से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड. अगेन बहुत सारे अमेंडमेंट तो 1 साल पहले ही आ गए थे. मैंने आपको बताया ना 1.5 साल का अमेंडमेंट मैंने इस वीडियो में कवर किया, 1.5 ईयर का. तो सीएसआर का जो अमेंडमेंट है, पहला बात तो 5 मई को सर्कुलर आया, 30 जुलाई को सर्कुलर आया, लेटेस्ट सर्कुलर 26 जुलाई 2022 को आया था. सीएसआर में बोला गया कि याद है ना 2021 में जब कोविड एकदम चरम सीमा पर था, तो बोला गया भाई आप अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड के लिए बना रहे हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो कोविड के लिए रूम्स बना रहे हो, आइसोलेशन रूम्स, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हो कोविड के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बना रहे हो, ऑक्सीजन का कमी हो गया था तो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हो, वेंटिलेटर्स सिलेंडर्स बना रहे हो, मतलब कोविड-19 को काउंटर करने के लिए, कोविड-19 को काउंटर करने के लिए आप अगर कुछ कर रहे हो खर्चा, वो सीएसआर माना जाएगा, वो सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा. वैसे ही अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मैं आपको बता दूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कर रहे हो वो भी सीएसआर माना जाएगा. ठीक है. फिर ये भी बोला गया कि सारे कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, सीएसआर एक्टिविटी अकेले तो कर ही सकते हैं, दूसरे कंपनी के साथ मिलकर के भी कर सकते हैं. कंपनीज कैन अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटी इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर कंपनीज ऑल्सो. ये सारे अमेंडमेंट 1 साल पहले के थे. ठीक है ना. फिर बेटा वैक्सीनेशन फॉर पर्सन अदर देन एम्प्लॉइज एंड फैमिली मेंबर, ये भी सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा, जो हमने भी किया था, एमईपीएल ने भी किया था. 10 लाख रुपया का, 10 लाख रुपीस का हमने कोरोना केयर फंड निकाला था, कोरोना केयर फंड 10 लाख रुपया का, जिसमें हमने वैक्सीनेशन कराया था अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स को जिनको दरकार था. 10 लाख रुपीस का लगाया गया था. ठीक है. तो अगर हम लोग वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं भाई अपने एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर को नहीं, उन लोगों को तो सभी करेगा, एम्प्लॉय और फैमिली को छोड़ करके अगर आप किसी को वैक्सीन दिलवा रहे हो तो वो सीएसआर एक्टिविटी के लिए एलिजिबल है. फिर देखो एक यूनिक चीज आया, आपको पता है ना हमने 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, 75th इंडिपेंडेंस मनाया, हर घर तिरंगा प्रोग्राम चला था कि नहीं चला था, हर घर तिरंगा. तो हर घर तिरंगा में भी अगर तुमने कुछ, मान लो हर घर तिरंगा में भी कुछ कंट्रीब्यूशन किया, या तो नेशनल फ्लैग छपवा दिया, हर घर में तिरंगा बंटवा दिया, तो खर्चा तो लगेगा ना, वो भी सीएसआर माना जाएगा. हर घर तिरंगा, इंग्लिश में ही लिखना है ये, हर घर तिरंगा. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट मत करके लिख देना एवरी होम फ्लैग, नहीं, टीम का नाम था हर घर तिरंगा. तो हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव में अगर तुमने कुछ खर्चा किया वो भी सीएसआर एक्टिविटी माना जाएगा अंडर आइटम नंबर 2 ऑफ शेड्यूल 7, आइटम 2 ऑफ शेड्यूल 7. क्लियर है सर, मक्खन एकदम. तो ये एक यूनिक चीज था. सीएसआर फॉर्म, ये भी 1 साल पहले का अमेंडमेंट था. सीएसआर का एक नया फॉर्म आया था सीएसआर 2. सीएसआर का एक खाली फॉर्म याद रखना, नया फॉर्म आया था सीएसआर 2. पहले सीएसआर का कोई फॉर्म नहीं हुआ करता था, पहले सीएसआर का कोई भी फॉर्म नहीं हुआ करता था, पहले सीएसआर का कोई भी फॉर्म नहीं हुआ करता था. अब एक फॉर्म था सीएसआर 2. कौन सा फॉर्म था बताओ? सीएसआर 2. तो इसको जमा करने का टाइम लिमिट सुन लो, सीएसआर 2 को जमा करने का टाइम लिमिट सुन लो. पास जो भी दिया वो पढ़ने का दरकार नहीं है. अब नया टाइम लिमिट सुन लो, सीएसआर 2 को जमा करने का नया टाइम लिमिट है कि भाई फॉर फाइनेंशियल ईयर, खाली इतना ही जितना मैं पढ़ा रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ, 21-22 का जो सीएसआर तुमने किया है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हो गया ना, तो उसका जो तुमने सीएसआर किया है सीएसआर 2 में रिपोर्ट जमा कर देना. जो भी तुमने 21-22 के लिए सीएसआर किया है, फॉर्म नंबर सीएसआर 2 में रिपोर्ट जमा कर देना. 21-22 कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2022 को. तो सीएसआर का रिपोर्ट सीएसआर 2 तुमको जमा कर देना 31 मार्च 2023 तक, 1 साल का टाइम दे रहे हैं, बिफोर 31 मार्च 2023. 21-22 का सीएसआर रिपोर्ट सीएसआर 2 तुमको जमा कर देना 31 मार्च 2023. और कब जमा कर दोगे? जब तुम अपना एनुअल अकाउंट्स जमा कर दोगे.
एनुअल अकाउंट्स का फॉर्म नंबर बताओ। बिल्कुल AOC4, अगर XBRL फॉलो करते हो तो AOC4 XBRL है, अगर NBFC है जो इंड AS फॉलो करता है तो उसका फॉर्म AOC4 NBFC इंड AS है, एज द केस में भी। तो जनरली मेरे कंपनी के ऊपर AOC4 एप्लीकेबल है, मैं AOC4 जमा करता हूँ। XBRL फॉलो करता है तो AOC4 XBRL फॉर्म हो जाएगा, इंड AS फॉलो करेगा तो NBFC है तो AOC4 NBFC इंड AS। AOC4 या AOC4 XBRL या AOC4 NBFC इंड AS, कोई भी एक फॉर्म जमा करने के बाद तुम CSR 2 जमा कर देना, 31 मार्च हो जाते ही। सर चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया सर, मक्खन की तरह क्लियर है सर। आखिरी अमेंडमेंट कमिंग अप, आखिरी अमेंडमेंट अकाउंट्स ऑफ कंपनी। याद है ना, अकाउंट्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल याद है सर, रूल नंबर 3 में आपने पढ़ाया है सर, रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014 कि अकाउंट्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं, बट कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है इट शुड बी एक्सेसिबल इन इंडिया। तो अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, पहले एक्सेसिबल इन इंडिया था, अभी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम। नॉट ओनली एक्सेसिबल इन इंडिया, इट शैल बी एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम। तो पहले ये वर्ड था एक्सेसिबल इन इंडिया, अब वर्ड आ जाएगा एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। पहले हम लोग को बैकअप पीरियोडिक लेना पड़ता था, अब डेली लेना पड़ेगा। बैकअप शुड बी मेंटेन्ड, पहले पीरियोडिकल बेसिस था, अब डेली बैकअप होना चाहिए, डेली बैकअप। एक नया क्लॉज और ऐड हो गया है रेड इंक से जो लिखा हुआ है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर, हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा मेंटेन कर रहे हैं, वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, आवर सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया शुड बी मेंशन्ड। एक तो सर्विस प्रोवाइडर तेरा आउटसाइड इंडिया भाई, तो इंडिया में कौन जिम्मेदार है, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया, उसका नाम एंड एड्रेस बताओ। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया शुड बी मेंशन्ड। मक्खन है सर, मक्खन, एकदम मक्खन है सर। एक नया प्रोविजो ऐड किया गया CSR से रिलेटेड कि भैया तुम्हारा अगर कुछ भी अमाउंट अनस्पेंड CSR अकाउंट में, कुछ भी अमाउंट अनस्पेंड CSR अकाउंट में, तो तुमको CSR कमेटी जो है ना कंटिन्यू करना पड़ेगा। देख लो भाई, अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंड CSR अकाउंट, तुम्हारा कुछ भी रुपया बाकी अनस्पेंड CSR अकाउंट में, तो तुमको कंटिन्यू करना पड़ेगा CSR कमेटी, और सेक्शन 135 कंप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, खाली याद रखना CSR कमेटी कंटिन्यू करना पड़ेगा इफ यू आर हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंड CSR अकाउंट। सब रूल 2 ओमिट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। सब रूल 2 पहले क्या बोलता था कि जिस कंपनी के ऊपर CSR लागू हो जाता है, अगला 3 साल तक अगर कोई भी कंडीशन अट्रैक्ट नहीं होता है तो 3 साल के बाद वो CSR कमेटी नहीं बनाएगा, CSR करना छोड़ देगा फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर। कुछ याद आ रहा है ऐसा धुंधला धुंधला कि लगातार 3 साल तक CSR का तीनों कंडीशन अगर अट्रैक्ट नहीं होता है, CSR का 3 कंडीशन रहता है ना, क्या 3 कंडीशन रहता है, या तो नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ रहे, या फिर नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, या टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़। ऐसा कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़ है, या फिर नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़ है, या टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़ है, तो उसको CSR करना पड़ेगा। CSR का प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा, कम से कम 2% CSR करना पड़ेगा ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। लेकिन लगातार 3 साल हो गया, एक भी कंडीशन मैंने नहीं छुआ, तो फिर मेरे को ये CSR से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा CSR से। एक बार, इसका मतलब एक बार CSR अट्रैक्ट हो गया तो अगला 3 साल तक तो तुमको CSR करना ही पड़ेगा, ऐसे पहले प्रोविजन था। और लगातार 3 साल तक एक भी कंडीशन अट्रैक्ट नहीं हुआ तो मैं बच जाऊंगा CSR से। अब ये सब हट गया, तो जो हट गया उसके बारे में क्यों बात करना है यार, रिलैक्स कर भाई। अब सिंपल सा प्रोविजन है, इस साल CSR करना है कि नहीं करना है, पिछले साल का कंडीशन देख लो। पिछले साल 3 में से एक भी कंडीशन अट्रैक्ट हुआ तो इस साल CSR होगा, पिछले साल तीनों कंडीशन अट्रैक्ट नहीं हुआ तो इस साल CSR करने का दरकार नहीं। समझ में आ गया, इस साल CSR करना है कि नहीं करना है, हमेशा लास्ट ईयर का डेटा चेक कर लेना। नेट प्रॉफिट मिनिमम 5 करोड़, नेटवर्थ मिनिमम 500 करोड़, टर्नओवर मिनिमम 1000 करोड़, तीनों में से एक भी कंडीशन अट्रैक्ट हो गया तो इस साल CSR करना। और लास्ट ईयर अगर एक भी कंडीशन अट्रैक्ट नहीं हुआ तो इस साल CSR नहीं करना है। क्लियर है सर? CSR का रिपोर्टिंग सुन लो, CSR का रिपोर्टिंग सुन लो भाई। CSR का रिपोर्टिंग एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, पेपर अगर बहुत टफ बनाया गया तब पूछा जा सकता है, बट उतना लेवल नहीं होता भाई। CSR का रिपोर्टिंग क्या है सुन लो। बोलता है ऐसा कंपनी जिसका CSR का ऑब्लिगेशन 10 करोड़ है, भाई ये बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, समझो, जिन लोग हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाता है, जिन लोग हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमाता है उसी के ऊपर CSR का ऑब्लिगेशन 10 करोड़ आएगा ना। CSR जो 2% हम लोग निकाले हैं वही 10 करोड़ आ रहा है, समझ रहे हो मेरा बात। CSR मेरा 10 करोड़ आ रहा है,
मोटा मोटी एवरेज 10 करोड़ आ रहा है पिछला 3 साल का। पिछला 3 साल का मेरा सीएसआर का लायबिलिटी 10 करोड़ है। लास्ट 3 साल का मेरा सीएसआर का लायबिलिटी एवरेज में 10 करोड़ है। तो मेरा कंपनी जिसका सीएसआर का लायबिलिटी 10 करोड़ है, कम से कम मिनिमम 10 करोड़, तो भैया मेरे को फिर ना एक एजेंसी को हायर करके, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, पीडब्ल्यूसी एनवाई इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करके सीएसआर का इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे सीएसआर के प्रोजेक्ट किए होंगे, ऐसा सीएसआर का प्रोजेक्ट जिसमें 1 करोड़ रुपया मिनिमम फूका है। सर अभी तो आप 10 करोड़ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा सीएसआर का लायबिलिटी 10 करोड़ है ऑन एन एवरेज। मैंने अब बहुत सारा सीएसआर का प्रोजेक्ट किया, बाथरूम बनाया, एजुकेशन दिया, हंगर को इरेडिकेट किया, तो अलग अलग मेरा सीएसआर का प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें सीएसआर का मैंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया कम से कम, उसका इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा कि भाई कितना वो इंपैक्टफुल रहा, क्या वाकई में इरेडिकेट हुआ हंगर, क्या वाकई में पॉवर्टी इरेडिकेट हुआ। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करो, इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करो और उससे इंपैक्ट असेसमेंट कराओ कि मेरा जो सीएसआर का प्रोजेक्ट था 1 करोड़ या उससे ज्यादा वाला, उसका क्या इंपैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर। समझ में आ गया सर? तो ऐसा कंपनी जिसका एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन मिनिमम 10 करोड़ का है इन इमीडिएटली 3 प्रीसिंग फाइनेंशियल ईयर शैल अंडरटेक इंपैक्ट असेसमेंट। कौन करेगा इंपैक्ट असेसमेंट? इंडिपेंडेंट एजेंसी करेगा, उसको हायर करेंगे हम लोग। ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, ऐसा सीएसआर प्रोजेक्ट जिसमें आउटले यानी एक्सपेंडिचर मिनिमम 1 करोड़ का हो रहा है। तो भैया फिर से सुन लो, 2 कंडीशन अट्रैक्ट होना चाहिए। मेरा सीएसआर का ऑब्लिगेशन एवरेज 10 करोड़ का है पिछला 3 साल में। मैं इंपैक्ट असेसमेंट उस प्रोजेक्ट का कराऊंगा जिसमें मैंने 1 करोड़ या उससे ज्यादा फूका है। ठीक है ना? क्लियर है? और 1 साल कंप्लीट हो गया है वो प्रोजेक्ट में रुपया लगाए, वो प्रोजेक्ट में रुपया लगाए 1 साल हो गया, अभी रुपया लगाया, अभी क्या इंपैक्ट असेस करेगा? इंपैक्ट आने में टाइम लगेगा भाई, 1 साल होने दे भाई। अच्छा, इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट एजेंसी देगा, बोर्ड के सामने, डायरेक्टरों के सामने पेश होगा और सीएसआर रिपोर्ट के साथ अनेक्स होगा, बोर्ड के सामने पेश होगा एंड अनेक्स टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ सीएसआर। अब कंपनी जिसने इंपैक्ट असेसमेंट कराया है, ये खर्चा मैं बुक कर सकता हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इंपैक्ट असेसमेंट अगर मैंने कराया है तो मैं खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर सकता हूं, मतलब ये खर्चा मैं क्लेम कर सकता हूं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं क्लेम कर सकता हूं। नॉर्मली सीएसआर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, है ना? सीएसआर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बट आई कैन बुक इट एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितना सर? 2% ऑफ द सीएसआर या 50 लाख, विच एवर इज हायर। मान लो मैंने 10 करोड़ रुपया सीएसआर किया, तो मैं कितना खर्चा बुक कर सकता हूं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? खाली याद रखना, 10 करोड़ सीएसआर किया तो 10 करोड़ का 2% कितना होता है? 2 करोड़। नहीं यार, 2 करोड़ का होता है यार, 10 करोड़ का 2% कितना होता है रे बाबा? 20 लाख। तो 20 लाख और 50 लाख, हायर कौन सा हो गया? 50 लाख। मैंने सीएसआर में फूक दिया 100 करोड़, सीएसआर में खर्चा किया 100 करोड़, 100 करोड़ का 2% बोलो, 2 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, विच एवर कितना हो जाएगा? आंसर इज 2 करोड़। मैं खर्चा बुक्स ऑफ अकाउंट बुक कर सकता हूं। कंपनी अंडरटेकिंग इंपैक्ट असेसमेंट में बुक द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सीएसआर। मैं सीएसआर का खर्चा अपने बुक्स में बुक कर सकता हूं, बट मैक्सिमम कितना बुक कर सकता हूं? 2% ऑफ सीएसआर और 50 लाख, विच एवर इज हायर। तो अगर मैंने सीएसआर 100 करोड़ का किया तो 100 करोड़ का 2%, 2 करोड़ 50 लाख, हायर बता दो 2 करोड़। आई होप दिस अमेंडमेंट इज क्लियर, रॉक सॉलिड। ठीक है ना? सारे के सारे अमेंडमेंट्स बेटा मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। डोंट फॉरगेट टू रेफर आवर क्लासेस टू योर जूनियर्स एंड कलीग्स एट www.meplclass.com। आपके कारण ही हम हैं बेटा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगता है, मेहनत अगर अच्छा लगता है, सेल्फलेस मोटिव नजर आता तो पक्का से हमारे क्लासेस को रेफर किया करिए। वी गारंटी द बेस्ट कॉलेज एजुकेशन। ये अमेंडमेंट लेक्चर स्टूडेंट लोग को तो कम आएगा ही, बहुत सारे टीचर लोग को भी कम आएगा, आशा करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं बहुत ही पॉजिटिव बंदा हूँ, सबके साथ शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बता देना अमेंडमेंट लेक्चर कैसा लगा, एग्जॉस्टिव था कि नहीं था। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड यू गाइस आर श्योरली गोइंग टू पास। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।